Good morning to all. This is Himanshu Agarwal, and I'm here to present my a particular seminar on finance function. Basically, finance function होता क्या है? As we all know, in organization there are many functions: finance function, production functions, selling functions. A lot of functions are performed in a particular organization. So, finance function is introduction. Introduction. As we can see, as we all know, in organization, every function is interrelated with each other. In some and other way, each and every function is somehow connected to each other. One affects another. So finance function is it can't be separated from production, marketing, and other activities of the organization. But we can easily identify about this various functions prevailing in the organization. यहाँ बोला क्या जा रहा है? यहाँ ये बोला जा रहा है कि finance function, other functions, marketing functions, advertising functions, they are correlated with each other. If you advertise a particular product, it will increase its sales. Not guaranteed, but it will definitely help in to this, some extent. But uh, when we talk about identifying a particular function, then we can easily identify what type of function we are facing or we are dealing with. Next, we have the function of raising funds. In this, when we talk about finance functions, there are three type of decisions which we can take or which we take generally. First is the function of raising funds. Funds are the blood of the business. Simple. Funds are treated as the blood of the business, because without funds you can't do anything. The function of raising funds is called financing decisions. When you talk about to finance a particular project or to earn a particular profit to give our shareholders, then we have to allocate the funds or say receive the funds in a right manner. So first of all, the manager has to ensure that from a right source he or she can borrow money, or say he or she can finance his project. How do we raise funds? There are many methods which we can discuss later. इन्वेस्टिंग दैम इन एसेट्स, जो फंड्स आपने लिए रेज किए, उनको कैसे हमें एसेट्स में लगाना है, किस टाइप की एसेट्स हमें परचेज करनी है जो कि लॉन्ग टर्म में हमें हमारी बिजनेस को चलाने में सहायता करें. तो दीज आर कॉल्ड इन्वेस्टिंग डिसीजंस. इन्वेस्टिंग डिसीजंस आर नॉर्मली कंसिडर्ड फॉर लॉन्ग टर्म. Short term investment decisions are also taken into consideration, but as we know, from the business perspective, from the long term profitability, we have to ensure our investing decisions for long time perspective. Third is distributing profit earned from assets to shareholders, basically dividend decisions. So there are many type of decisions, and now we are talking about dividend decisions. Dividend, what is dividend? Dividend is a particular amount of profit that is distributed among investor annually or interim basis. Interim basis भी आजकल दिया जाने लगा है, हर 6 महीने में, हर क्वार्टर लीव दे देते हैं, बीच बीच में अनाउंस कर देते हैं. तो ये भी एक डिसीजन है कि इफ वी वांट टू मेंटेन, इफ वी वांट टू रिटेन इन्वेस्टर्स, अगर आप रिटेन करना चाहते हो शेयर होल्डर्स को, देन यू हैव टू गिव सम रिटर्न टू देम. ठीक है, आपको रिटर्न देना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, जिससे कि वो आगे एलोकेट करें और आपको मनी दें अपनी. Next, while ensuring all these functions, firm have to consider the position of the cash flow, liquidity decisions. So इन तीनों फंक्शंस के साथ जो डिसीजंस मैंने आपको बताए, फाइनेंसिंग डिसीजंस, इन्वेस्टिंग डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस, इन तीनों decisions के साथ we also have to ensure a cash flow positions. Cash flow positions, basically what amount of cash comes in or what amount of cash goes out. ठीक है, this is called cash flow positions, because up to a great extent they affect the liquidity decisions, कि कितनी liquidity, कितना पैसा आपके पास आ रहा है, कितना पैसा आपके से जा रहा है. Next we have I just classify both the decisions, financial decisions into two perspectives, into two categories: long term financial decisions, short term financial decisions. So what are long term finance decisions? Long term finance decisions basically are something like this: buying assets and investing aspects. Basically, when we talk about long term, we invest our money
in such things which are generally helpful or say productive in long term. So assets are the main things. अगर आपको assets खरीदनी है, plant रहा, machinery रही, office बनवाया, these all are assets, है ना? तो investing purpose for long term. Next, we how to raise funds. The question of raising funds is also considered in long term financial decisions. We also raise the funds for short term decisions, so it is also considered in short term financial decisions. But when we talk about for long term, then the this thing comes under this. Next we have third डिसीजन इसी के अंदर, इन व्हाट मैनर प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इन्वेस्टर्स। तो ये भी एक लॉन्ग टर्म डिसीजंस है कि किस मैनर में और किस तरीके से आप अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें प्रॉफिट को एलोकेट करेंगे। आजकल डिविडेंड पॉलिसीज होती हैं, डिविडेंड पॉलिसीज भी आप लोग को जानना जरूरी है, जिसके अंदर स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी होती है और फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड पॉलिसी भी होती है। स्टेबलिंग में ये होता है कि आप पिछले सालों को कंपेयर करके रिटर्न देते हैं और बाकी का पैसा रिटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डिसीजंस। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डिसीजंस आर दोज डिसीजंस व्हिच आर मेनली फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस और लेस देन वन ईयर। एक ये भी है कि अगर आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसीजंस करते हैं तो वो मेनली एक साल से ज़्यादा के डिसीजंस होते हैं, एक साल के अंदर के नहीं होते। और शॉर्ट टर्म जो होते हैं वो लेस देन वन ईयर के लिए होते हैं। सो इन दिस हाउ टू मेंटेन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, इसमें ये देखा जाता है कि अगर आप शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डिसीजंस की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर कि हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि वी कैन ईजिली पे आउट टू आवर डेटर, टू आवर क्रेडिटर्स। बेसिकली क्रेडिटर्स को आप पैसा इजीली दे दें, ना कि देनदारी काफ़ी बढ़ जाए, है कि नहीं? तो जो लेनदारी है आपसे वो काफ़ी बढ़ जाए, तो आपको ये दोनों को मेंटेन करना होता है, डेटर एंड इट्स क्रेडिटर्स। तो यू हैव टू पे देम एट राइट टाइम, अदरवाइज यू कैन इजीली बी अ रॉन्ग person in business. In this, next short-term decision is how to allocate money for short-term finance for investment purpose. सो एक ये भी चीज़ है कि शॉर्ट टर्म में भी इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं। देयर आर मैनी थिंग्स व्हिच आर फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस, है ना? तो आप शॉर्ट टर्म के लिए कभी कभार आरडीज खुलवा लेते हैं, एफडी खुलवा लेते हैं, पैसा किसी स्कीम में डाल देते हैं जो कि एक साल से कम की होती है ना? पड़े पड़े अगर आपका पैसा कुछ एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो आप इन चीज़ों को खुलवा लेते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म डिसीजंस भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके साथ साथ नाउ वी आर डिस्कसिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस डिसीजंस इन एक्सपेंशन, लाइक कैसे क्या क्या चीज़ें और इसके अंदर आती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस डिसीजंस आर दोज डिसीजंस विच आर जनरली फॉर लॉन्गर पीरियड, एग्जाम्पल फॉर मोर देन वन ईयर। सो एज आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द पीरियड 1 ईयर होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसीजंस का, मोर देन 1 ईयर। दे हाईली अफेक्ट द परफॉर्मेंस एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म। एक चीज़ को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस डिसीजंस ले रहे हैं तो दीज डिसीजंस आर मेनली टेकन इनटू कंसिडरिंग all the firm's aspect for long term, like long term वैल्यू क्या होगी फर्म की, वैल्यू इंक्रीजिंग एस्पेक्ट है कि नहीं है, परफॉर्मेंस कैसे बिल्ड होगी जो कि ईयरली रिपोर्ट में दिखेगी कि आपकी फर्म इंक्रीज कर रही है, ग्रोथ हो रही है उसकी, है ना? नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन इसी के अंदर गिरते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस डिसीजन में। इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर विच आर मेनली डन फॉर बाइंग एसेट्स। इन्हें हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस भी कहते हैं। आपको अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बनाना पड़ता है, उसके बाद चूज द प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इवेलुएटिंग प्रॉफिटेबिलिटी। बेसिकली आपको ये नहीं है, पैसा है आपके पास, आपने रेज कर लिया तो आपकी ड्यूटी यहीं खत्म नहीं हुई है। आप रेज कर लेंगे और बिना इवेलुएशन के इसको एलोकेट करते हैं तो ये आपकी वेस्टेज और से अनसक्सेसफुल थिंग को लीड कर सकता है। तो इसमें आप उन प्रोजेक्ट्स को चूज करते हैं जिनमें प्रॉफिटेबिलिटी दिखती है लॉन्ग टर्म में, है ना? जो कि सब जो फैक्टर्स हमारे पास, देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच यू हैव टू कंसीडर व्हाइल फाइनेंसिंग अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सो ऑलवेज कीप इनटू कंसिडरेशन ऑल द फैक्टर्स लाइक माइक्रो एंड मैक्रोस एंड इन्फ्लेशन फैक्टर। देयर आर मेनी फैक्टर्स। इन्फ्लेशन फैक्टर, अब एज वी ऑल नो व्हाट इज इन्फ्लेशन? महंगाई दर।
किस दर से महंगाई बढ़ रही है, उसको भी आपको कंसिडर करना पड़ता है. इफ यू आर नॉट कंसिडरिंग इन्फ्लेशन फैक्टर, then you are ultimately leading to a particular position where the money will be less and the profit will be less. After uh, after discounting all these factors, we should finance projects. Evaluate the approach of opportunity cost. What may be the best next best possible outcome, ठीक है, at present. So ये नहीं है कि आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया तो you just allocate your money into that project, but you have to ready for next best possible outcome, कि इससे बढ़िया और इससे बेटर अपॉर्चुनिटी अभी मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, where we can easily get more returns from previous alternative. In this type of decisions, we should also consider sources where from and we can arrange the funds for funding activities, financing decisions. ठीक है, जो कि हम कह चुके हैं कि आपको रिसोर्सेज डिसाइड करने होते हैं where you have to pay less interest or you have to pay less for getting funds. आपको ऐसे sources को identify करना होता है. There is a mix in organization which combine equity and debt together. The mix is known as कैपिटल स्ट्रक्चर. सो ये कैपिटल स्ट्रक्चर ये है काफ़ी काफ़ी मेन है इसके अंदर, आप देखें, क्योंकि इन दिस वी जनरली सी टू एस्पेक्ट और टू थिंग्स, डेट एंड इक्विटी. बोथ दी थिंग्स आर very important. If you are highly debt company, then the risk of the shareholders will definitely be high. सो आपको मेंटेन करना होता है एक ऑप्टिमम स्ट्रक्चर रेशियो, जो कि जिसमें डेट भी हो, इक्विटी भी हो, बट वो मेंटेन करे रिस्क को एज वेल एज इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करे अपने फंड्स को और देने के लिए. तो व्हेन देयर इज नो डेप्ट, शेयरहोल्डर्स रिटर्न इज इक्वल टू फर्म्स रिटर्न. सॉरी फॉर दिस, डेट नहीं है यहाँ पे, डेप्ट है, ऋण जो होता है. शेयरहोल्डर्स रिटर्न इज इक्वल टू फर्म्स रिटर्न. अगर फर्म में मान लीजिए डेट का पोर्शन नहीं है, डेट का पोर्शन बिल्कुल नहीं है, तो जो भी अर्न करेगी फर्म, वो जो पूरी अर्निंग होगी वो फर्म्स इक्वल होगी फर्म्स के रिटर्न के. शेयर होल्डर्स को दी जाने वाली अर्निंग होगी वो फर्म्स के रिटर्न के इक्वल होगी, वैल्यू ऑफ फर्म के. द डेट में इंक्रीज द शेयर होल्डर्स रिटर्न बाय टेकिंग एंड यूटिलाइजिंग चीप इंटरेस्ट रेट्स. आप ये देखते हैं कि डेट से अगर आप फाइनेंस करते हैं तो बहुत सी कंपनीज काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में डेट को प्रयोग करती हैं. तो हाईली लिवरेज कंपनी भी बोलते हैं जिनको. तो वो क्या करती हैं कि डेट का पोर्शन काफ़ी हाई करके रखती हैं, जिसकी वजह से उनके शेयर होल्डर्स के जाने का रिस्क बहुत हाई होता है ना. तो इसमें होता क्या है कि कंपनी केवल चीप इंटरेस्ट रेट, डेट की चीप इंटरेस्ट रेट है. यू डोंट हैव टू पे पे दी पे व्हाट यू हैव डिसाइडेड मोर देन व्हाट यू हैव डिसाइडेड. ठीक है, आपको ने जितना डिसाइड किया उससे ज़्यादा आपको पे करना नहीं होता है. एक एग्जैक्ट इंटरेस्ट रेट होती है, यू हैव टू पे, चाहे कितना ही प्रॉफिट हो. बट शेयर होल्डर्स के केस में उल्टा है. शेयर होल्डर्स के केस में आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको देना ही है और ज़्यादा भी दे सकते हैं. ठीक है, तो डेट एक लिमिटेड कर देता है आपकी प्रॉफिट डिडक्शन को. एट द सेम टाइम इट इंक्रीजेज द शेयर होल्डर्स रिस्क. बट ये शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करने का जो रिस्क होता है, ठीक है, शेयर होल्डर्स के जाने का जो रिस्क होता है उसको भी बढ़ा देता है, क्योंकि रिस्क बढ़ जाता है ऑर्गेनाइजेशन में उसके डूबने का. द थर्ड मेजर फाइनेंस डिसीजन इज डिविडेंड डिसीजंस. डिविडेंड डिसीजंस भी इसी के अंदर आते हैं. व्हाट आर डिविडेंड डिसीजंस? डिविडेंड डिसीजंस आर दोज डिसीजंस व्हिच आर टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट्स अमंग शेयर होल्डर्स. सो शेयर होल्डर्स में कैसे आप प्रॉफिट का एलोकेशन करते हैं, उनको कैसे मेंटेन करते हैं, दीज ऑल decisions are come under this category. How much money does a firm want to retain and how much money does it want to allocate among the investors? So ये एक बहुत मेन क्वेश्चन है. ठीक है, क्योंकि एक फर्म को डिसाइड करना होता है कि हाउ मच मनी डज इट वांट टू रिटेन, कितना पैसा ये प्रॉफिट में से रिटेन करना चाहती है आगे फ्यूचर पर्पस के लिए. कि ये तो नहीं है कि वो पूरा पैसा डिविडेंड के तौर पे बांट दे इन्वेस्टर्स में, ठीक है, और बाद में उस पर कुछ ना बचे एक्सपेंशन के लिए. सो इसमें ये देखना होता है कि आपको कितना पैसा आगे एक्सपेंशन के लिए. बट यू हैव टू जस्टिफाई इट इनटू एनुअल जनरल मीटिंग. व्हेन a particular director announces the dividend rate, then it also announces he or she also announces that why we are retaining this much of profit in our organization.
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जस्टिफाई नहीं करेंगे तो शेयर होल्डर समझेंगे कि आपने जस्टिफाई नहीं किया कि आपने क्यों पैसा रोका है, हमारा हिस्से का जो हमने पैसा आपको लगाया है वो हमारा रिटर्न है, तो आपने क्यों नहीं दिया, तो आपको जस्टिफाई करना होगा उनको, ठीक है। सो इसके अंदर डिविडेंड पे आउट रेशियो, वी विल फेस डिविडेंड पे आउट रेशियो, dividend payout ratio and retention ratio. Director will consider these two ratios, or say any particular person responsible for it will take into consideration दो जो दो तरह के रेशियो होते हैं उनको कंसिडर करेगा, dividend payout ratio and retention ratio. Retention ratio simply दो is that ratio which which shows the money which is retained in the organization, and dividend payout ratio DPS upon EPS ऐसे करके निकालते हैं इसको। EPS अर्निंग पर शेयर होती है, कितनी अर्निंग में से कितना प्रॉफिट आपने बांट दिया, दैट इज पे आउट, ठीक है, डिविडेंड पे आउट। Next, we have short-term finance decisions. Short-term finance decisions are mainly those decisions which are taken for less than 1 year. These are mainly those decisions which are for less than 1 year. We should know how to manage current assets and liquidity in the firm. Current assets क्या होता है? Current assets are those consider current assets are equal to current assets minus current assets होते हैं, तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। तो वी हैव टू मैनेज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इन शॉर्ट टर्म फाइनेंस डिसीजंस, ठीक है। लिक्विडिटी को भी मेंटेन करना होता है और आपको इतना पैसा वर्किंग कैपिटल के तौर पे मेंटेन करना होता है कि आपकी जो liabilities हैं that can easily be paid out. If a firm has less liquidity, it may go towards insolvency. Insolvency एक particular term है जो कि firms की unavailability दिखाता है कि उस पे availability नहीं है कैश की इतनी कि वो अपने जो creditors हैं उनको पैसा पे आउट कर सके। So अगर liquidity firm के पास नहीं बचती है तो उसको वो insolvency में चली जाती है। So that's all. I hope you like it. I am giving my best to provide productive lectures. So please subscribe my channel, and I'll ensure that I will upload more videos than present. Thank you so much.